السلام علیکم ایوری ون اینڈ آج ہمارا سیشن ڈاکٹر فواد سلام خان صاحب کے ساتھ ہے. ان کا تھوڑا سا میں انٹروڈکشن کروا دوں کہ یہ انہوں نے ملیشیا سے پی ایچ ڈی کی اور پھر اس کے بعد فرانس میں ابھی اسسٹنٹ پروفیسر بھی رہے پاکستان میں, اور اس کے بعد ابھی فرانس میں پوسٹ ڈاک ریسرچر کا بھی انہوں نے وہ اس میں کر رہے ہیں کام. تو تھینک یو ویری مچ. اے آئی ان کا اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے, اور آج ہم کچھ کویشچن پوچھیں گے. ان کی ویب سائٹ ہے, ان کا پوری پاسٹ میموریز ہیں آپ کے ساتھ شیئر میں کرتا ہوں ابھی. تو فواد خان صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دس سیشن. آپ سے میرا کویشچن یہ ہے کہ پہلے تو آپ بتائیں کہ یہ آپ کو کس چیز نے پرسیو کیا کہ آپ کیریئر اے آئی یا ڈیٹا سائنس میں گئے, اور پھر اس کے بعد پھر آپ کا فرانس کا جو جرنی ہے اس حوالے سے کچھ آپ رہنمائی فرمائیں گے اور روشنی ڈالیں گے. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر حبیب, تھینک یو ویری مچ فار دا کہ جی آپ نے مجھے اس میں انوائٹ کیا. اور میں بیسکلی اسٹارٹ کروں گا تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کے حوالے سے. فردر آپ نے کافی بریفلی چیزیں بتا دی ہوئی ہیں, لیکن میں اپنا اسٹارٹنگ کیریئر تھوڑا سا بتاتا ہوں, پھر اس کے بعد لیٹس ہیو ڈیٹیل ڈسکشن. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں نے جو ہے بیسکلی آئی ایم اے کمپیوٹر انجینئر, اور 2003 میں سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی سے میں نے کمپیوٹر انجینئرنگ میں جو ہے وہ ڈگری حاصل کی. دین اس کے بعد میں انڈسٹری میں چلا گیا, اور انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ کمپیوٹر نیٹ ورکس کے اندر مختلف سرٹیفکیشن, سسکو کی سرٹیفکیشنز وغیرہ کمپلیٹ کی. اور بیک ان 2011 جو ہے پھر میں نے این ای ڈی یونیورسٹی سے اپنا کمپیوٹر انجینئرنگ کے اندر ہی ماسٹرس کیا. بٹوین دیٹ ٹائم میں نے جو ہے وہ کافی ساری سرٹیفکیشنز وغیرہ اور پروجیکٹس اور ٹریننگز جو ہے مختلف کنٹریز میں, اسپیشلی فرام جرمنی, سنگاپور, اور ملائیشیا, اور دین بنگلہ دیش, یہاں پر میں مختلف لیول کے اوپر کرتا رہا. دین اس کے بعد میں نے 2011 میں اکیڈیمیا کی فیلڈ کے اندر میں آیا, اور اکیڈیمیا میں نے جو ہے وہ ہائی ٹیک یونیورسٹی ٹیکسلا سے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا, اور وہاں پہ میں 2015 تک جو ہے وہ کمپیوٹر نیٹ 19 کے اندر جو ہے وہ چونکہ اوبیسلی کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ٹرینڈ چینج ہو رہا تھا انڈسٹری میں, اور اکیڈیمیا کے اندر اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو کہ جی نیٹ ورکس کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ سیچوریشن اسٹارٹ ہو رہی تھی. دین آئی ول اسٹارٹ ود اندر ماسٹرس ان کمپیوٹر سائنس فرام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ود دا اسپیشلائزیشن آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اور وہاں سے پھر میں نے اپنی جو فیلڈ ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ڈائریکٹ کیا اے آئی کی طرف, اسپیشلی امیج سیگمنٹیشن اور کمپیوٹر ویژن کی طرف. دین جو ہے پھر میں اس کے بعد 2019 تک, بلکہ 2020 میں انیشلی میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی. دین پی ایچ ڈی کے لیے پھر میں 2020 کے جون میں جو ہے وہ اسٹارٹنگ فرام مارچ, کووڈ کا ٹائم تھا تو اسی سے پہلے جو ہے میں ملائیشیا چلا گیا. دین اسٹارٹ ود دا پی ایچ ڈی, اور پھر میں نے وہاں پہ جو ہے وہ کافی سارے پروجیکٹس کمپلیٹ کیے, اور اے آئی کے اندر جو ہے وہ پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی امیج سیگمنٹیشن کلاسیفیکیشن کے ساتھ. بٹوین دیٹ ٹائم جو ہے وہ پھر کیونکہ اپنی کافی ساری چیزیں بیچ میں چینج کی تھی, تو میں نے سب سے پہلے اپنا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیا 2019 میں. دین آئی گیٹ سم پروجیکٹس فرام سلیکون ویلی, اور ہم نے جو ہے وہ ماشاء اللہ کوئی تقریباً $200,000 کے جو ہے وہ پروجیکٹس کمپلیٹ کیے سلیکون ویلی سے, اور اس میں کافی جو ہے وہ اسٹارٹ کیا, اور اس میں مطلب ریلیٹڈ ٹو ڈفرینٹ ڈیزائن آف پی او سیز, پروف آف کانسیپٹس کے اوپر پروڈکٹ ڈیزائن کر کے جو ہے وہ ہم نے سلیکون ویلی میں دیے. دین اس کے بعد جو ہے وہ آئی بیک ٹو پاکستان ان 2023, اور دین آئی اسٹارٹیڈ وتھ کیٹ کے اندر جو ہے کراچی میں ایک یونیورسٹی, دین اسٹارٹ دا کیریئر ایز این اسسٹنٹ پروفیسر, اور وہاں پر میں سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ہی جو ہے وہ اے آئی سے ریلیٹڈ کرتا رہا. بیک ان اگست 2023 I'll join جو ہے وہ ایئر یونیورسٹی اسلام آباد, اور میں ابھی بھی ایز این اسسٹنٹ پروفیسر ہوں وہاں پر, اور میں 1 سال کی لیو کے اوپر جو ہے میں فرانس آیا. اب اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ فیز ہے بٹوین ایئر یونیورسٹی, میں نے ماشاءاللہ 6 ایم ایس کے اسٹوڈنٹس بھی ابھی تک گریجویٹ کر دیے ہیں, اور کافی پبلیکیشنز وغیرہ بھی اس کے اندر میں کر چکا ہوں. اس کے علاوہ ابھی بیک ان 2024 لاسٹ ایئر جو ہے وہ اکتوبر کے اندر بیسکلی سینٹر آف نیشنل دلیل ریسرچ سائنٹیفک جو CRNS کہلاتا ہے, ان کے پاس سے جو ہے کچھ ویکنسیز آئی تھیں ریسرچرز کی, پوسٹ ڈاکس کی, تو ہیو بین اپلائیڈ دیئر, اور اس میں الحمدللہ جو ہے وہ شارٹ لسٹ ہوئے ان 63 کینڈیڈیٹس آل اوور دا ورلڈ. اور دین اس کے بعد ہمارے مختلف کوئی تقریباً 3 سے 4 انٹرویوز ہوئے, اور اس میں کچھ سیشنز جو تھے وہ ٹیکنیکل سیشنز ہوئے کافی زیادہ ہیں یہاں فرینچ ٹیم کے ساتھ. تو لاسٹلی ہم کوئی 3 لوگ بچے تھے,
Then in October 2024, finally I've been selected as a postdoc researcher in University of Lille by the funding of CRNS. तो मैं बेसिकली CRNS जो है वो फ्रेंच गवर्नमेंट की रिसर्च एकेडमी है यहाँ पर, और उन्होंने फिर मुझे ग्लोबल टैलेंट फ्रांस का जो है वो टैलेंट पासपोर्ट कहलाता है, वो दे ऑफर्ड मी दैट वीजा फॉर 1 year दैट कैन बी एक्सटेंडेबल मोस्ट प्रोबेबली, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इसकी एक्सटेंशन भी हो सकती है. तो करंटली आई एम वर्किंग ऑन लिप्स लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक थ्रू स्टेथोस्कोपी के अंदर, और लिप्स के जो है वो के अंदर मैं मुख्तलिफ AI की टेक्निक से जो है लंग कैंसर के अंदर काम कर रहा हूँ यहाँ पे, उसकी प्रिडिक्शन और एनोमली डिटेक्शन के लिए. तो यहाँ पर जो हमारी टीम है इसके अंदर मेरे साथ तकरीबन 4 PhDs हैं, जिसमें 2 इटली से हैं, एक स्पेन से है और एक नीदरलैंड से है, और उनको मैं जो है लीड कर रहा हूँ. तो एक अच्छी टीम मेरे साथ यहाँ काम कर रही है. तो ये एक बेसिक लेवल है जो स्टार्टिंग फ्रॉम 2003 से मेरा करियर स्टार्ट होता है, और सिंस लाइक आज 22 साल तकरीबन इस चीज को हो गए. तो स्टार्टिंग विद द कैरियर विद द कंप्यूटर नेटवर्क्स, देन स्विचिंग अराउंड लाइक 2017 में फिर मैं AI साइड के ऊपर शिफ्ट हुआ, और बिटवीन दैट डिफरेंट सर्टिफिकेशंस, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, और माशाल्लाह काफी एक एक्सपीरियंस लेवल के ऊपर आ चुका हूँ. वेरी ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल. डॉक्टर साहब आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा किया, आपने बड़ी डिटेल से बताया, इतना तो मैं शायद कवर भी ना कर सकता, कई चीज़ें तो मेरी ऊपर से गुजर गई हैं, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, सिलिकॉन वैली और ये चीज़ें माशाल्लाह. सो ग्रेट ग्रेट गाइडलाइन है हमारे लिए, मेरे लिए, ऑडियंस के लिए. सो आप इसमें, मैं एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि भाई इसमें जो चैलेंजेस आपको आए, जब आपको वो स्टेप्स जो थे आप वो शेयर कर सकते हैं, जो चैलेंजेस आए आपने ये जो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा अप्लाई किया फ्रेंच का, और इसमें ये जो पूरा प्रोसेस आपका पोस्ट डॉक का जर्नी है, इस हवाले से अगर कोई थोड़ी रोशनी डाल दें प्लीज. अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इनका जो सबसे पहला स्टेप होता है, जब मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली रिगार्डिंग द इंटरव्यूज और सारा कुछ, तो आई हैव रिसीव्ड द ईमेल फ्रॉम माय प्रोफेसर कि जी आपकी तमाम चीजें क्लियर हो गई है और नाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट यू एज एन पोस्ट डॉक. अच्छा, उसके बाद इन्होंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहला फेज इन्होंने किया कि दे गेट माय डॉक्यूमेंट्स लाइक मेरा पासपोर्ट और ये सारी चीजें रिलेटेड, जो मेरी करंट जॉब है यूनिवर्सिटी के अंदर, ये सारी डिटेल्स मुझसे ली, और उन्होंने मुझसे तकरीबन 2 वीक का टाइम लिया, जिसके अंदर इन्होंने मेरी सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाई इन फ्रांस. ठीक है, दे हैव देयर ओन वे, ऑब्वियसली वो इनका कॉन्फिडेंशियल मेथड था, वो मुझे इतना एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन उन्होंने 2 वीक का टाइम लिया. 2 वीक के टाइम के बाद जो है आई गेट द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम फ्रेंच रिसर्च काउंसिल CRNS कि यू हैव बीन सेलेक्टेड, और उन्होंने देन दे गेव मी एन ऑफर लेटर. अच्छा, अब उस ऑफर लेटर के ऊपर जो है वो फ्रेंच वेबसाइट के ऊपर जाके मैंने वीजे के लिए अप्लाई किया, विच इज लाइक उसकी 100 यूरो फीस थी, और वो सारा अप्लाई करने के बाद पूरा प्रोसीजर जो है वो मुझे प्रोफेसर ने गाइड किया था, और उन्होंने सारी चीजें मुझे एक सॉर्ट ऑफ एन स्क्रीनशॉट, एक PDF में भेज दी थी कि जी आपने इस तरह से चीजें भरती जानी है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रेंच मेरी लैंग्वेज नहीं है, तो उसमें कुछ ट्रांसलेशंस के भी इश्यूज थे, लेकिन उसमें मुझे प्रोफेसर ने सारी डिटेल्स दी. उसके बाद मैंने जो है जब वीजे के लिए अप्लाई किया, तो उसके लिए इस्लामाबाद में कंपनी है, उधर से जो है फिर मुझे उनकी लेनी पड़ी टाइमिंग जाके वीजे की, और वीजा जो है वो फिर मुझे उसकी तकरीबन 15 दिन का उन्होंने मुझे टाइम दिया, और तकरीबन 17-18 डेज के अंदर जो है मुझे वीजा आ गया. अब बेसिकली बीच में जो चूंकि एक इंटरव्यू का सेशन भी था, तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो वीजा के टाइम के ऊपर इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस वगैरह इंपॉर्टेंट उन्होंने मुझसे पूछे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी रिगार्डिंग ये कि जी मेरा फ्यूचर प्लान्स क्या है, फ्यूचर गोल क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर कीन अबाउट के अगर मेरा लॉन्ग टर्म एक्सटेंशन की बात होती है, तो एक तो सबसे पहले वो ये चीज देख रहे होते हैं कि आपके जो है वो कितना लंबा आपका स्टे हो सकता है मैक्सिमम. तो उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आपको जो ऑफर हुई है इट कैन बी एक्सटेंडेबल और नॉट. तो ऑब्वियसली मैंने उनको यही जवाब दिया, क्योंकि मैं सुपरवाइजर मुझे बता चुके थे कि इट कैन बी एक्सटेंडेबल टू 2 years और 3 years, डिपेंड अपॉन के जी फंडिंग कैसे होती है. बट उन्होंने मुझे 1 साल का वीजा अलॉट किया इस चीज के ऊपर. देन दे हैव रिलेटेड सम क्वेश्चंस कि जी आपने फ्रेंच सीखी है या आपको फ्रेंच आती है. मैंने उनको बताया कि नहीं, मैं ऑब्वियसली ऑल्दो जर्मनी में मैं काफ़ी अर्से रहा हूँ, और मैंने बाकी कंट्रीज़ में भी किया, और ऑब्वियसली मलेशिया के अंदर भी हमारा जो PhD था वो सारा इंग्लिश के अंदर ही था. तो ऑब्वियसली मैंने उनको बताया कि जी इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें होती हैं. देन दे गॉट सम रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, और वो वहीं पे बैठे बैठे ही उन्होंने ऑनलाइन जो है वो चीज़ें चेक कर ली थी, लाइक आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है, ये फॉर्म एक आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है, वो हमने कर ली थी पहले से, लेकिन उनके पास सारा सिस्टम था, नादरा से रिलेटेड कोई कॉन्टैक्ट होता है एम्बेसी का, आई डोंट नो, बट वो ऑनलाइन सिस्टम पे देख रही थी खातून, मैं बैठा हुआ था तो वो सारी चीजें देख रही थी.
देन उसके बाद जो है वो मुझे उन्होंने तकरीबन 15 to 17 डेज का कहा, और लाइक 31 अक्टूबर 2024 को मैंने अप्लाई किया था, और 17 और नवंबर को जो है मुझे वीजा मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, और देन आई फ्लाई केम हियर इन जनवरी, और देन अभी तकरीबन माशाल्लाह 5 महीने हो चुके हैं मुझे इस चीज़ के ऊपर, तो एक बड़ा अच्छा सेशन जा रहा है इस चीज़ के ऊपर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड अगर एकेडमिक और रिसर्च की बात करें, जिसमें आपने जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि भी उसमें आपने रिसर्च फंडिंग जो है इंस्टीट्यूशन जो यूके के अंदर है या सिलिकॉन वैली है या मलेशिया है, तो ये रिसर्च फंडिंग जो सिक्योर करने का जो प्रोसेस है, इस हवाले से कोई रोशन डालेंगे प्लीज? अच्छा देखिए, मैं स्टार्ट लेता हूँ इसको। जब हमने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो स्टार्ट में हमारे पास जो मेरे बेसिकली फाउंडर्स थे, एक फाउंडर मेरे यूके में थे, साद सिद्दीकी, और दूसरे जो थे वो यूएस में थे। और देन विल स्टार्ट विद कि जी हमने एक कोलैबोरेशन करने के बाद एक टीम डेवलप की पाकिस्तान में, और जो फंडिंग थी वो उसका मेजर पोर्शन जो है वो हमारे जो फाउंडर थे यूएस में वो जनरेट करते थे, और उसके बाद वो चीजें फिर हमारे पास प्रोसेस होती थी। तो जो स्टार्टअप था, वो स्टार्टअप हमने यूके में भी रजिस्टर कराया हुआ था और पाकिस्तान में भी रजिस्टर कराया हुआ था। तो देन स्टार्ट विद दैट के जी वो डिफरेंट, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर फंडिंग नहीं हुई है, वो मुख्तलिफ पोर्शंस में हुई है। फिर उसके बाद हम जब आगे बढ़ते पीएचडी की तरफ, तो पीएचडी में जो है वो मुझे जो है वो एफआरएनएस की तरफ से जो है एफआरजीएस, सॉरी मलेशिया में एफआरजीएस होती है, फंडामेंटल रिसर्च ग्रांट स्कीम होती है, जो कि पीएचडीज को दी जाती है। वो सुपरवाइजर की फंडिंग होती है, वो गवर्नमेंट की तरफ से ही होती है। तो वो पूरे 3 साल की फंडिंग जो है वाज लाइक 2300 रिंगिट्स की पर मंथ मुझे जो है फंडिंग मिली थी उस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर, और देन वो सारी कंप्लीट की, और अभी भी जो है वो तकरीबन 100,000 यूरो से ऊपर की फंडिंग इस वक्त है, जो कि फ्रेंच रिसर्च गवर्नमेंट ने हमें दी है यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसमें फंडिंग को हासिल करने के लिए जो कोलैबोरेशन, इसमें कुछ पॉइंट्स अगर बता सकते हैं ऑडियंस के लिए कि जो इस प्रोसेस में अगर इन होना चाहें या फंडिंग के लिए, तो इस हवाले से कोई रहनुमाई? अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि 2-3 सिनेरियोज हैं। एक तो इंटरनेशनल फंडिंग्स है, और एक आपके पास लोकल फंडिंग्स होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं स्टार्ट करता हूँ पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन से। अभी हम एक प्रपोजल लिख रहे हैं रिसेंटली पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के लिए, जिसके अंदर जो है 4 डिफरेंट कंट्रीज को वो कोलैबोरेशन करके, यानी कि जो कोलैबोरेट करके आप उनके साथ कर सकते हैं। तो हम जो है वो काजाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान मिलके जो है वो एक रिसर्च फंडिंग के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ ताजिकिस्तान जो है वो हमें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे फंड करेगी। ठीक है, तो उसके कुछ ऑब्वियसली क्राइटेरिया होते हैं। मिसाल के तौर पे जब आपने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देखना होता है, एक प्रपोजल लिखना होता है, उस प्रपोजल के अंदर आप सारी चीजें बताते हैं। देन उसमें आप अपनी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसमें अगर कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है या जो अगर सर्विसेज इस्तेमाल हो रही हैं, तो उनकी तमाम की डिटेल्स आप उसके अंदर ऐड करते हैं, और फिर वो एक प्रपोजल बनाने के बाद टाइमली मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है, चाइना में इसी तरीके से उनकी एक इंस्टीट्यूशन है, और रशिया में है, काजाकिस्तान में, तो दे गेट सम अप्रूवल्स फ्रॉम देयर, और फिर वो एक म्यूचुअली तौर पे हम उसकी फंडिंग को जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पैदा होता है कि ये तो पाकिस्तान से रिलेटेड चीजें हैं, मैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टअप की बात की, तो उसमें सिनेरियो इस तरह से होता है कि आप कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को डिजाइन कर लेते हैं, और उस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के ऊपर आप जो है ना वीसीज को ढूंढते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट को। वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर, मिसाल के तौर पे अभी जैसे हमने एक सिलिकॉन वैली का प्रोजेक्ट किया था, जिसमें हमने जो है ऑटोमेटेड फिटनेस ट्रेनर डिजाइन किया था। तो उस ऑटोमेटेड फिटनेस ट्रेनर के ऊपर जो है वो एक वीसी था, उस वीसी ने जी हमें स्पेसिफिकली एक अमाउंट हमें कहा कि जी ठीक है, हमने उनसे रिक्वायर्ड किया कि आप इतना अमाउंट हमें इस चीज के ऊपर इनिशियल जो है वो सीड फंड दें, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें। ठीक है, तो ये तो एक सीड फंडिंग रिलेटेड चीजों को हम से ले सकते हैं। लेकिन अगर फर्ज करें कि जी मैं राइट नाउ अगर मैं पोस्ट डॉक की फंडिंग की बात करूं, तो इसमें भी 2 तरीके हैं। एक पहला तरीका ये है कि आप प्रपोजल लिखें, और प्रपोजल लिखने के बाद आप पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद जो है वो ऑब्वियसली जैसे अभी एमसीएसए आईवी आयरलैंड की वहां पर भी काफी सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, और उसमें अपने प्रपोजल्स होते हैं, और वो प्रपोजल्स करने के बाद उनके अप्रूवल्स मिलते हैं, और वो अप्रूवल होने के बाद वो पूरे 3-4 सिनेरियोज हैं, वो मुख्तलिफ साइकिल्स होती हैं, उन साइकिल्स के अंदर आप क्लियर कर रहे होते हैं। दूसरी चीज ये होती है, दूसरा जो पॉइंट होता है वो ये है, जैसे मेरे केस के अंदर इस तरह से है कि सीआरएनएस ने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो असाइन कर दिया। अब उस प्रोजेक्ट के लिए जो है दे आर हायरिंग पीपल
टू गेट के जी उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के ऊपर जो है वो डेवलप कर सके। अच्छा, अब होता क्या है कि ऐसे काम में जब आपने जो काम करना होता है वो एक वेग सा आइडिया होता है, और जो आप रिसर्चर को लेकर आ रहे होते हैं वो उसका सोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। मिसाल के तौर पे अभी हम जैसे लंग कैंसर की एनोमली डिटेक्शन पे उन्होंने एक जनरलाइज चीज कह दी, लेकिन उसके अंदर जितने एल्गोरिथम्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी हमारा एक फेज डी नॉइजिंग सेक्शन पे जा रहा है, तो उसमें जो जो एआई से रिलेटेड सर्विसेज हैं उसको मैं कितना बेहतर कर सकता हूं या मेरी टीम कितना बेहतर कर सकती है, वो एक उसके ऊपर आइडिया कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर ये फंडिंग इस तरह से जब आपको मिलती है तो आप क्या करते हैं कि आप जो है उसको मुख्तलिफ पोर्शन में ब्रेक कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल क्वार्टरली लेवल के ऊपर आपने एक काम करके देना होता है, तो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन जो है टोटल 1 ईयर की है, तो आपने कहा जी एक क्वार्टर कंप्लीट हुआ, आपने ये पोर्शन कंप्लीट किया, उसके अंदर आपको इतने, ऑब्वियसली वो मंथली आपको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो पूरे प्रोजेक्ट की जो फंडिंग है, लाइक फॉर एग्जांपल 100,000 है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो 25,000 यूरोस जो हैं फॉर एग्जांपल, वो पर क्वार्टर के अंदर आप उसकी डिवीजन करते हैं। वेरी नाइस। और ये जो पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है, इसमें रशिया भी शामिल है मेरे ख्याल में, कजाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान और रशिया भी है मेरे ख्याल में। जी, रशिया भी, मेरी जी जी, जी, रशिया तो में भी हमारी बातचीत हुई है, हो रही है एक दो लोगों से, जी, लेकिन वो कुछ चीजें ऑब्वियसली जहां पे बेहतर मटेरियलाइज हो जाती हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है उसका। ग्रेट ग्रेट दैट्स। और इसमें पोस्ट डॉक रिसर्च के दौरान जो कोई आपको बिगेस्ट चैलेंजेस जो फेस किए हैं या पॉसिबिलिटीज हैं और उनको ओवरकम करने का तरीका, वो इस हवाले से अगर आप रोशनी डालें प्लीज। अच्छा, इसमें जो चीज मैं करंटली फेस कर रहा हूँ उसमें असल में मेरे साथ जो काम कर रहे हैं लोग, उसमें एआई के लोग इतने ज्यादा नहीं हैं। लाइक फॉर एग्जांपल दे आर रिलेटेड टू केमिकल इंजीनियर्स, क्योंकि वो लेजर इंड्यूस वाली साइड है, कुछ केमिस्ट्री के लोग भी हैं, कुछ फिजिक्स के लोग भी हैं। तो उस सिनेरियो में होता ये है कि जब आपको स्पेसिफिक कोई टास्क दिया हुआ होता है तो वो बाय डेफिनेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस होता है, जो मैंने फेस की हैं चीजें, ठीक है। तो उसके लिए आप जो सोल्यूशन डिजाइन करते हैं वो थोड़ा सा लेमैन अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा कि जी आपने किसी चीज में से लॉस को खत्म करना है, तो अब ये एक इम्पॉसिबल मेथड है कि आप लॉस को खत्म कर दें। लॉस मिनिमाइज हो सकता है, लॉस खत्म नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब उसके लिए जो टेक्निक हमने यूज की, उन्होंने कहा कि जी आप डी नॉइजिंग करते हैं, अब स्पेक्ट्रल डेटा है उसके अंदर आपने डी नॉइजिंग करनी है। अब डी नॉइजिंग के भी जो है वो ऑब्वियसली प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और ऑटो इनकोडर्स और एलएसटीएम्स और काफी सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। बट विच मेथड इज अवेलेबल बेटर? अब फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करने के बाद अब मैंने उसमें एजेंटिक एआई भी अप्लाई करना शुरू कर दी है, ठीक है। तो एजेंटिक एआई बिल्कुल न्यू टेक्निक है कि आप ऑब्वियसली 3-4 मेथड्स दे देते हैं सिस्टम को, और सिस्टम विल ऑटोमेटिकली गेट द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम इटसेल्फ, और जो बेटर सोल्यूशन है वो खुद बता रहा होता है। तो उससे जो लेमैन है उसको ये चीज पता है कि फॉर एग्जांपल उसको पीसीए का नाम पता है, उसको ऑटो इनकोडर का पता है, लेकिन जनरलाइज विच सोल्यूशन इज बेटर, तो मशीन क्या करती है कि वो उसको खुद बेटरली अंडरस्टैंड करके उसका सोल्यूशन डेवलप करती है और वो दे रही होती है। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन मैंने बनाया है और मैं ऑब्वियसली साथ साथ लेके चल रहा हूँ। तो एक ये अच्छी चीजें हैं जो साथ साथ हमारे पास आ रही है। दूसरी जो चीज मैंने जो फेस की है ऑटोमेटिकली के हम लोग असल में चूंकि पाकिस्तान ओरिजिन से हैं, तो हमारा वर्किंग कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हमारी रिसर्च का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पे मैंने फ्रांस में आने के बाद एक ये चीज देखी कि वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम की डेप्थ में बहुत ज्यादा जाते हैं, ठीक है। और हम पाकिस्तान में जो है वो डेप्थ से ज्यादा ब्रेथ में देख रहे होते हैं, चीजों को ज्यादा करते हैं, मतलब हमारे पास जो है वो ब्रेथ लेवल के ऊपर चीजें ज्यादा होती है, डेप्थ कम होती है, ठीक है। तो अब स्पेसिफिकली आप यकीन करें कि लास्ट 2 मंथ से हम सिर्फ एक प्रॉब्लम के अंदर मुख्तलिफ मेथड्स को लगा के जो है वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है उसके ऊपर मुख्तलिफ मेथड्स लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि विच वन इज बेटर। आप बात समझ रहे हैं? तो जी जी बिल्कुल। दीज आर द प्रॉब्लम्स चेंजेस। और लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी मेरा एक्सपोजर है बाहर का भी लोगों के साथ, और मैं मुख्तलिफ किस्म के साथ काम करता रहूं, तो ये चीजें। और मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लगी फ्रांस आने के बाद और फ्रेंच साइंटिस्ट के बाद, दे आर क्वाइट मच हेल्पफुल और सपोर्टिव बहुत ज्यादा है, और इतना ज्यादा प्रेशर नहीं जनरेट करते कि जी आपको स्पेसिफिकली, अगर मिसाल के तौर पे लास्ट वीक हम एक चीज पे काम कर रहे थे, कुछ सोल्यूशन पॉजिटिव नहीं आए, तो हमारी फोर्टनाइटली मीटिंग होती है जिसमें हमने प्रेजेंट करना होता है 2 हफ्तों का काम। तो आई गेट सम थिंग्स, और मैंने चीजें लिखी, तो उसके बाद मुझसे एक क्वेश्चन पूछा एक रिसर्चर ने कि डॉक्टर फवाद, आर यू सेटिस्फाइड विद ऑल दीज रिजल्ट्स? मैंने उनको जवाब दिया नो। अब उस नो के ऊपर
दे आर आस्किंग मी कि जी इसकी ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, नो, इन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, तो उन्होंने पूछा कि डू यू हैव एनी अदर रेस आउट कि आप इसको बेहतर कर सकते हैं। मैंने कहा जी आई एम ट्राइंग टू हैव समथिंग आइडियाज, और मैंने कुछ बेसिक आइडियाज उनको बताया कि मैं इस तरह से करूँ। तो उसके बाद मुझे उन्होंने कहा यस गो अहेड और उसको काम करें, और मुझे कोई प्रेशर नहीं किया कि जी आपने इसके सोल्यूशन ऐसे नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जबकि अगर फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में होते या कहीं और होते तो वहां माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है रिसर्चर्स का। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही सही कह रहे हैं। ये डेप्थ और रिसर्च के हवाले से डेप्थ वर्सेस ब्रेड्थ जो है, वो उस हवाले से भी आपने सही रहनुमाई फरमाई है। और इसमें टूल्स के हवाले से अगर हम टेक्निकल डेप्थ और जो आपने बताया प्रोजेक्ट्स की स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में जाए, तो कौन से आप फेवरेट टूल्स या फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज जो एआई डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, उस हवाले से? अच्छा, अब देखिए इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर फॉर एग्जांपल आप जीपीयू बेस्ड मशीन इस्तेमाल करते हैं और जीपीयू में आपको पता है क्यूडा आपने इस्तेमाल करना है उसके ड्राइवर्स के अंदर, तो क्यूडा अगर 11.5 से ऊपर है तो उसके बाद टेंसरफ्लो उस पे काम नहीं करता। ये बड़ा मैं आपको पॉइंट की बात बता रहा हूँ। तो लोग क्या करते हैं कि जी कहते हैं कि जी हमें टेंसरफ्लो बहुत अच्छा आ रहा होता है, ठीक है आप टेंसरफ्लो पे काम करें, लेकिन अगर आपकी क्यूडा लाइब्रेरीज 11.5 से ऊपर है तो you'll go for PyTorch। तो इस वक्त जो इम्प्लीमेंटेशन है, हम मेरे पास टेस्ला के V100 के पूरी ब्लेड्स हैं 8 जीपीयू की, 32 जीबी का एक जीपीयू है, और मैंने हर जीपीयू के ऊपर उसको बेसिकली जो है वो PyTorch की इन्वायरमेंट क्रिएट की हुई है और उसके साथ काम कर रहे हैं। और उसके अलावा जो सिंगल दूसरी मशीन्स हैं जिसमें भी जीपीयूज है, लेकिन वो क्यूडा 11.5 से नीचे की मशीन है, उसमें हम टेंसरफ्लो पे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो टेंसरफ्लो के साथ जो है scikit-learn भी इस्तेमाल हो रहा है, मैटप्लॉटलिब को भी हम कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ लाइब्रेरीज हैं। इसी तरह से जो एनोमली डिटेक्शन है, तो उसके अंदर जो है एडाक्रूटकिट के नाम से कुछ लाइब्रेरीज हैं, वो हम यूज कर रहे हैं इस पाइथन की। तो इस तरह से है, लेकिन बेसिक जो हमारी चीजें हैं वो सारी पाइथन रिलेटेड ही चीजें हैं जिसमें हम काम करते हैं। वेरी नाइस, दैट्स ग्रेट। एंड इसमें चूंकि आपने स्टार्टअप एज अ सीईओ भी काम किया है, आप एकेडमिक्स में भी हैं, बैलेंस कैसे करते हैं रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप और ये सब? अच्छा, इसमें देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि आप जब आप किसी स्टार्टअप से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं तो कोशिश ये करें कि आप जो मैं करता हूं बेसिकली, मैंने अपने पाकिस्तान में जहां मेरी अपनी रिहाइश थी, उस रिहाइश के ऊपर ही मैंने जो है वो एक अपनी लैब क्रिएट की हुई थी। तो उस लैब का मुझे फायदा ये हुआ, उस लैब के अंदर मैंने हायर एंड की जीपीयूज भी रखे हुए हैं, मैं यूएवीज वगैरह भी डिजाइन कर रहा हूँ, तो उसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के कंट्रोलर्स भी हैं, सब चीजें हमने रखी हुई थी। तो हम क्या करते थे कि जब वीकेंड के ऊपर मैं नॉर्मली उनको टाइम दे रहा होता था, और साथ में जो है वो मेरे साथ ऑन एंड ऑफ मेरी ऑनलाइन कुछ टीम्स हैं, मेरे अपने कुछ स्टूडेंट्स होते थे स्टार्टअप के अंदर जो मेरे साथ मुसलसल काम कर रहे होते, तो मैंने वीकली उनको कुछ टास्क असाइन कर दिया, और मैं उसके बाद एक वीक के बाद उसकी वो कर रहा होता, और उसमें अगर कोई मीटिंग्स वगैरह होती थी तो मैं इवनिंग टाइम के अंदर ले लेता था। ऑल्दो इट वाज डिफिकल्ट, बट ये चीजें साथ साथ आपको पता है करना पड़ती हैं। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि मेरी तकरीबन 14 से 15 घंटे नॉर्मली मेरी वर्किंग होती है आम दिनों, तो दैट्स नाइस, इस तरह से मैनेज करते हैं। दैट्स ग्रेट। आज इसमें अगर एडवाइस देना चाहें जो यंग रिसर्चर्स जो कमर्शलाइज करना चाह रहे हैं अपना एआई वर्क को, एआई स्टार्टअप के हवाले से, उस हवाले से कोई रहनुमाई फरमाएंगे? अच्छा, अब देखें पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स होते जा रहे हैं, और पाकिस्तान में भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे नस्ट हैं, उसमें डॉक्टर यासिर अयाज साहब होते हैं एनसीआई के अंदर। हमारे यहाँ एयर यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है वो स्टार्टअप्स के लिए बाकायदा और एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है, और उन्होंने हमारे यहाँ तो एआई के अंदर बाकायदा स्टार्टअप्स के लिए जो है वो जगह भी फराहम कर दी है, और उसमें मशीन्स वगैरह जीपीयूज वगैरह भी अवेलेबल है एयर यूनिवर्सिटी के अंदर। और थैंक्स टू आवर वाइस चांसलर, और बड़े ही विजनरी किस्म के उनके आइडियाज थे, तो उन्होंने हमें दिया हुआ है। और रिसेंटली एक बड़ा अच्छा ये काम हुआ है कि साइबर कूजा के नाम से टर्किश एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो हमारी एयर यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्होंने अपना पूरा सेटअप लगा लिया, तो स्टूडेंट्स वगैरह काफी ज्यादा हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मेरे जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनको यही आइडिया देता हूँ कि आपने जो भी पीओसीज बनाने हैं, उस पीओसी के ऊपर, लाइक फॉर एग्जांपल आज एलएलएम्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर अगर आपने काम करना है, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, डीप सीक हो गया, इस तरह से रिलेटेड अगर आपने कोई काम करना है, तो आप सबसे पहले आप अपने सिस्टम के ऊपर ना फॉल्स टेस्टिंग करें। लोगों को ना ये इस चीज का पता नहीं होता कि यार मैं सिस्टम तो मैंने एक बना लिया, लेकिन मैं जब किसी के सामने लेके जाता हूं तो मुझे ये पता है कि मैं उसको किस किस तरीके से पिच कर सकता हूं। तो सबसे पहले जब आपने काम करना है तो आप अपने लेवल के ऊपर उसकी फॉल्स टेस्टिंग कंप्लीट करें। देन उसके बाद जब आप उसको पिच करते हैं तो सबसे पहला आइडिया आपके पास कमर्शियलाइजेशन का होना चाहिए।
भाई मिसाल के तौर पे मैंने चीज तो बना ली, लेकिन लोगों को यही नहीं आइडिया कि मेरे पास मैंने बेचना कहाँ है। तो जब उस चीज को आपने बेचना है तो आप सबसे पहले जो काम करेंगे वो ये देखेंगे कि मार्केट में पोटेंशियल कस्टमर किधर मौजूद है, ठीक है। जी फॉर एग्जांपल अगर फॉर अभी रिसेंटली हम कुछ प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए मैं सबसे पहले उस मार्केट को देखूंगा कि अगर वो मेडिकल साइड पे लंग कैंसर पे मैं काम कर रहा हूं, तो मैंने लंग कैंसर के ऊपर इन्होंने क्या किया है कि उन्होंने पेरिस से डेटा सेट लिया है। पेरिस के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर, इवन लील के अंदर भी और इवन बेल्जियम में भी, अभी मेरा नेक्स्ट वीक और एम्स्टरडेम और बेल्जियम का भी विजिट है, तो वहां पर इन्होंने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के साथ जो है वो चीजें बनाई हुई हैं, कनेक्शंस बनाए हुए हैं अपने, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी हम आपको एक ऐसा सोल्यूशन देंगे जिसके ऊपर हम ये चीजें आपको एनॉमलीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब कस्टमर ने तो चीजें हमें नहीं बताई है, चीजें आपने पिच करनी है, तो जो मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आप चीजों को रेडी करते हैं, उसके ऊपर फॉल्स टेस्टिंग करते हैं, देन उसका कमर्शियलाइजेशन फेज कंप्लीट किया जाता है, देन यू विल गो अहेड विद द गो टू द मार्केट के जी उसमें किस तरह से उसको सेल करना है। वेरी नाइस माशाल्लाह ग्रेट। और इसमें जो रैपिड एडवांसमेंट हो रही है ये एआई में, इसमें आप अपडेट कैसे रहते हैं, हाउ टू स्टे अपडेटेड विद दिस, इसमें कुछ टिप्स आप बताना चाहें प्लीज। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और इवन जब मैं नॉर्मली सेशंस वगैरह भी कहीं दे रहा होता हूँ तो ये क्वेश्चन एक बड़ा रिलेटेड क्वेश्चन होता है। इसमें सबसे मेन चीज ये होती है करंट ट्रेंड्स के अंदर, मैंने कुछ लोगों को जो एआई के अंदर जो बहुत ही मुस्तनद नाम समझे जाते हैं पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के बाहर भी, मैं उनको थोड़ा फॉलो कर रहा होता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो रिसर्च में लेटेस्ट रिसर्च पब्लिश हो रही है, मतलब मिसाल के तौर पे नेचर के अंदर कोई चीज पब्लिश हो रही है, या फॉर एग्जांपल IEEE ट्रांजैक्शंस के अंदर कोई चीज हो रही है, इवन CVPR की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं मैं उसको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो अब रिलेटेड टू अब AI के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं ना, अगर आपने NLP साइड पे जाना है तो NLP के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपने कंप्यूटर विजन के अंदर रहना है तो इसमें करना है, रीइंफोर्समेंट में रहना है तो करना है। तो अब इतनी सारी चीजों को तो आप फॉलो अप कर नहीं सकते, तो आपने करना ही होता है कि आप जिस चीज पे रिलेटेड है उसके आप लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल्स और उसका जो कोई मुस्तनद नाम है, उस मुस्तनद नाम के साथ आप उसको फॉलो करते रहे। मैं 3-4 लोगों को फॉलो करता हूँ, यूएस में भी, पाकिस्तान में भी 1-2 लोग हैं उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, इवन मलेशिया में है 2-3 लोग। तो जब आप फॉलो कर रहे होते हैं तो आपको एक आइडिया हो रहा होता है कि मार्केट में किस तरह से काम हो रहा है और आपने उसको कैसे कैसे चीजों को लेके चलना। वेरी नाइस माशाल्लाह। और इसके अंदर जो अर्ली करियर प्रोफेशनल्स हैं उनको अगर आप कोई गाइडलाइन या उनको एडवाइस करना चाहें कि इंटरनेशनल रिसर्च अपॉर्चुनिटीज के हवाले से। जी, अच्छा, अब देखें ये तो एक बहुत ही अच्छा आजकल स्टार्ट हुआ है, हर यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान में खासतौर पे हमारी एयर यूनिवर्सिटी भी कर रही है और जी बाकी यूनिवर्सिटी भी कर रही है कि इन्होंने इंटर्नशिप जो है आपने 4th सेमेस्टर के बाद या 5th सेमेस्टर के बाद जो है कंपलसरी कर दी है। इवन अभी मेरे पास रिसेंटली 2-3 मैसेजेस आए हुए हैं यूटी लाहौर से भी और मुख्तलिफ जगहों से कि सर हमें बेसिकली बताएं कि हमने इंटर्नशिप्स करनी है तो हम अर्ली कैरियर कैसे अपना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप जब तक आप इंडस्ट्री में जाके देखते नहीं है काम को, आपको आइडिया नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा पहले फ्रांस से कि फ्रांस में किस तरह का है सिस्टम और हमारे यहाँ किस तरह का सिस्टम है, फिर हम देखते हैं कि इसको कैसे हम इंटर रिलेट कर सकते हैं। नंबर 1, फ्रांस के अंदर इंड्रिया के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है और CRNS है, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये हर सेमेस्टर के अंदर जो है इंटर्नशिप अप्लाई करती है। मेरे कुछ स्टूडेंट जो एयर यूनिवर्सिटी के अंदर थे उन्होंने रिसेंटली अभी अपना बैचलर्स कंप्लीट किया और वो मेरे आने से पहले फ्रांस ही आए हैं और उन्होंने यहाँ पर बड़ी हायर एंड की जगह पे, जिसमें वो मेटा के साथ भी हैं और 2-3 अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिया के प्लेटफॉर्म से होते हुए वो उनके साथ इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं CRNS की, दे हैव द सिंपल, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपको मैं इस सेशन के बाद चाहेंगे तो लिंक भी शेयर कर दूंगा, स्टूडेंट्स वगैरह के साथ कर सकते हैं, तो वहां पर वो बच्चे आराम से जाएं और वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जापान में भी अप्लाई हो रहा है, कर रहे हैं लोग, सिंगापुर में भी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पर एक इशू ये होता है कि बच्चे की GPA सबसे ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट लेवल पे किसी को एवेल्युएट करना है तो आई नीड टू सी द GPA और उसका एकेडमिक जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो सारी मैं फॉलो करूंगा। इसी लिहाज से पाकिस्तान के अंदर भी अब काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इंटर्नशिप्स ऑफर करती हैं। ऑल्दो मैंने जब अपने स्टार्टअप को मैं बूस्ट लेके चल रहा था तो मेरे पास भी हर सेमेस्टर के अंदर मैं मुख्तलिफ बच्चों को जो है वो इंटर्नशिप्स कराता था। उसमें कुछ पेड भी होती थी, कुछ विदाउट पे भी होती थी, और कुछ में उसमें ये होता था कि लाइक फॉर एग्जांपल हमने अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं एयर यूनिवर्सिटी के अंदर जो फाइनल ईयर के बैच के बच्चे हैं उनको हर फैकल्टी मेंबर को ये मस्ट किया गया है कि आपने बच्चों को इंटर्नशिप्स के लिए उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देने हैं।
اچھا اب یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے ایئر یونیورسٹی کا بھی اور باقی یونیورسٹیز بھی اسی طرح کر رہی ہوں گی کہ ہر فیکلٹی ممبر کو یہ چیز کی پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ انڈسٹری کے ساتھ لیزن کرے اور وہاں سے پروجیکٹ لے اور وہ اپنے بچوں سے کروائے. تو اس میں فائنینشیل بینیفٹ بھی فیکلٹی کا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس کا بھی فائنینشیل بینیفٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے مختلف جو گروپس آف اسٹوڈنٹس ہیں وہ سٹارٹ لیتے ہیں انٹرنشپس کے ساتھ اور وہ پھر اپنے کیریئر کو کرتے ہیں. جب آپ انڈسٹری کا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ کر لیتے ہیں نا تو آپ کو کافی ساری KPIs کا اندازہ ہو جاتا ہے, کی پرفارمنس انڈیکیٹرز. لائک یو ول اسٹارٹ فرام ویئر, آپ کو پورے پروجیکٹ کا اسکوپ پتا چل گیا, آپ کو پروجیکٹ کے اسکوپس پتا چل گئے, ٹھیک ہے. دین آپ کو ایک ریسرچ پرابلم اور ریسرچ کوسچنس کے آپ کو ملنا شروع ہو گئے. دین یو ول ہیو اے پرٹیکولر پرابلم اسٹیٹمنٹ اور ایک آپ میتھڈولوجی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. اس میتھڈولوجی ڈیولپ کرنے کے بعد جب آپ ایک انڈر گریڈ کا اسٹوڈنٹ فائنل ایئر کا پروجیکٹ کر کے میں آ رہا ہوتا ہے یا اپلائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار آئی ہیو آلریڈی گون تھرو وتھ آل دیز اسٹیپس اور میں اس پروجیکٹ کو پورا پروسیس کر چکا ہوں, تو میں انڈسٹری میں اب جانے کے لیے تیار ہوں. جی ماشاءاللہ, گریٹ, دیٹس گریٹ. اور ابھی ہم سیشن اینڈ کریں گے انشاءاللہ, اور اس سے پہلے میں کچھ فائنل ورڈز آف موٹیویشن فار اسٹوڈنٹس جو کہ موڈیسٹ ایکڈیمک بیک گراؤنڈ ہے ان کا اور وہ گلوبلی اپنے آپ کو اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں, اس حوالے سے پلیز. اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا. اس میں تو لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ اب دنیا چینج ہوتی جا رہی ہے. دے پیپل آسک نارملی اباؤٹ دا اسکل سیٹ اور جی پی ایس وغیرہ کے اوپر جو کنسیڈریشنز ہوتی تھی کہ لائک ٹھیک ہے آپ کو اسکالرشپ چاہیے تو یو گیٹ سم ہائر جی پی ایس, میں اس کے اوپر وہ نہیں کہتا. لیکن اف اے پرسن ہو از گاٹ لائک میڈیوکر جی پی ایز ہے 2.75 اور بلو 3 بھی اگر کا جی پی اے ہے, میرے اپنے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں اور دے آر ڈوئنگ ویری ویل اراؤنڈ یو کے, اراؤنڈ یو ایس اور ڈفرینٹ جگہوں پہ, لیکن ان کے اسکل سیٹ ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پروف کیا کہ جی مجھے کوئی ٹاسک دیا اور وہ چیزوں کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ بفور گریجویشن یو مسٹ گیٹ آل دا اسکلس. لائک فار ایگزامپل آپ نے اگر اے آئی کے اندر یا ڈیٹا سائنس کے اندر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ کو 3 سے 4 لینگویجز اسٹارٹنگ وتھ پائتھن, آر اور اس طرح کی جو لینگویجز ہیں وہ آپ کو اچھی گرپ ہونی چاہیے. دین آپ کے پاس اپنے پورٹ فولیو کو ڈیزائن شو کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ایسے پروجیکٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے. لائک ضروری نہیں ہے کہ وہ کمرشل پروجیکٹس ہی ہوں, وہ سارٹ آف پی او سیز ہی ہو سکتے ہیں. کوئی فنڈنگ اس پہ نہ ہو کوئی بات نہیں, لیکن ایک آئیڈیا آپ کے پاس ہونا چاہیے جس سے مجھے آئیڈیا ہو کہ جی میں کس طرح سے کام کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں یا پرابلم کو کر سکتا ہوں. تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیمینارز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ضرور اٹینڈ کریں بچے, اور خاص طور پہ جو انڈسٹری کے جو سیمینارز ہوتے ہیں یا جو ایگزیبیشنز وغیرہ ہوتی ہیں پروجیکٹس کی, اس میں بچوں کو ضرور جانا چاہیے. ٹھیک ہے, وہاں سے آپ کو کافی زیادہ آئیڈیا ہوتا ہے انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ. آپ کو جب آپ ملتے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ انڈسٹری میں کس طرح کا کام ہو رہا ہے اور آپ کس کس طرح کی چیزوں کو کر سکتے ہیں. تو دیر ول بی لائک ایک اچھا آئیڈیا اسٹارٹ کرنے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈیورنگ اپنا جو آپ کا 5th سیمسٹر جب آپ کا اسٹارٹ ہوتا ہے یا 6th سیمسٹر کے بعد نا یو گیٹ ان ٹو دا تھنگس, اپنے فائنل ایئر پروجیکٹس کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنا کر سکتے ہیں. یہ تو لوکلی لیول کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر چیزیں آتی ہیں تو آپ بیسکلی اس وقت آپ سرچ کرنا شروع کر دیں کہ آپ نے اسپیشلی اگر تو 2 قسم کے اس میں بھی پوائنٹس ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس انڈسٹری میں جانا چاہتے ہیں اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ یار میں نے اپنے اکیڈیمیا کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو میں ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آفٹر دا گریجویشن آپ نے 2 سال کم از کم کام کرنا ہے, دین اسٹارٹ ود دا ماسٹرس. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ جو ہے نا وہ جاب ہنٹ کریں بہت زیادہ. لنکڈ ان کے اوپر, بائٹ کے اوپر, انڈیڈ کے اوپر جو ہے وہ thousands آف جابز اور اس طرح سے انٹرنشپس آ رہی ہوتی ہیں. اسٹارٹ ود دا تھنگ اور پھر آپ کو ایک اچھا آئیڈیا ہو سکتا ہے. پھر ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی انسٹیٹیوشن کے اندر جو بھی لوگ ہیں وہ اپنے ہر فیکلٹی ممبر آج کل کام کر رہا ہوتا ہے, تو آپ اپنی کسی اچھے فیکلٹی ممبر کے ساتھ جو ہے نا وہ انوالو رہیں اور ان کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں, تو یو گیٹ سم آئیڈیا کہ جی لوکل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ کریں. دوسری جو چیز میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کہتا ہوں, اس میں کسی قسم کی مطلب وہ نہیں ہے پوائنٹ, گیٹ دا آئیڈیا فرام دوز پیپل ہو ہیو سم فارن ایکسپوجر. ہمارے بچوں کا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں جن کا فارن ایکسپوجر نہیں ہوتا. اب جتنا میں اپنی بات نہیں کر رہا, اور کتنے لوگ دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں جب آپ باہر سے ہو کے آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ بھی ابھی یو کے میں ہیں, جب آپ کو ایکسپوجر ہوگا وہ ایکسپوجر کے اوپر جو آپ لوگوں کو بتائیں گے چیزیں تو وہ بالکل ڈفرینٹلی ہوں گی. آپ کسی کوزے میں چیز کو نہیں بتا رہے ہوں گے, یو ول ہیو اے بگر پکچر آف اینی پرابلم سولوشن. ٹھیک ہے, تو آپ نے ہمیشہ لیزن کرنا ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ تھوڑے سے فورن جن کو آئیڈیاز ہوں, تو وہ یو ول گیٹ سم گڈ ریسرچ بھی, اور مطلب ماسٹرز ہو, پی ایچ ڈی ہو, انڈسٹری ہو, تو آپ کو کافی سارے پوائنٹس وہاں سے مل سکتے ہیں.
वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसमें जो आपने कहा गेट आइडियाज़ फ्रॉम ग्लोबल एक्सपर्ट्स, इसमें अगर स्किल सेट के हवाले से अगर मतलब कि कोई एक आदमी रिसर्च वो स्टूडेंट है, उसको कुछ नहीं पता, मतलब वो स्किल सेट्स कुछ लेना चाह रहा है आइडिया इन ग्लोबल एक्सपर्ट से, तो उसमें से किस तरह मतलब वो क्राइटेरिया क्या फिक्स करे कि ये स्किल सेट जिस तरह आपने 4 बता दिए एआई में कि ये 4 पाइथन और ये करें। एक इस तरह जनरलाइज़्ड कोई भी फील्ड का स्टूडेंट है, वो अगर करना चाहे तो उसका कोई क्राइटेरिया आप बता सकते हैं और कौन से प्लेटफ़ॉर्म वो यूज़ करे? क्या यूट्यूब से फ्री वीडियोज़ देखे या मतलब कोई यूडेमी या कोई इस तरह इस हवाले से? जी, देखें मैं सबसे पहले तो उसमें ये कहता हूँ कि अगर फर्ज़ करें एआई के ऊपर है, तो एआई के अंदर वो एंड्रयू एनजी को deeplearning.ai को फ़ॉलो करें। मैं आज भी उसको फ़ॉलो कर रहा हूँ, पिछले 8 साल से फ़ॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? और मुझे काफ़ी सारी बेहतर चीज़ें वहाँ से मिल रही होती हैं। इसी तरह से आपने शॉर्ट कोर्सेज़ करने हैं, तो थाउज़ेंड्स ऑफ मटीरियल अवेलेबल है। इंडिया के काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक कृष नाइक एआई का एक बड़ा अच्छा एक्सपर्ट मौजूद है वहाँ पर। देन आपके पास जो है कोर्सेरा की काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आप हाँ, एंड्रयू एनजी लाइक मैंने भी ज़िक्र किया आपको। तो मैं हुँ, इसको प्रॉपर फ़ॉलो कर रहा होता हूँ, ठीक है? लाइक आप अगर कृष नाइक को भी करना चाहें, तो उसके ऊपर भी हैं काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एडुरेका है, ठीक है? तो यू विल जी। स्टार्ट विद डिफरेंट थिंग। ये डिपेंड करता है कि आपने स्पेशलाइज़ेशन किसके ऊपर करनी है, ठीक है ना? तो लाइक पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी सारे कुछ लोग हैं जो कि इस वक़्त अभी ऑनलाइन काफ़ी अच्छी वीडियोज़ वग़ैरह बना रहे हैं, तो आप उनको भी फ़ॉलो कर सकते हैं। ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा, इसमें थैंक यू वेरी मच। आपका माशाल्लाह ज़बरदस्त सेशन हो गया। तो लेट्स एंड दिस सेशन हियर एंड आपकी वैल्यूएबल इनसाइट्स का और डीपली मोटिवेशन का और फिर ट्रूली आपने अप्रिशिएट योर टाइम एंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस यू हैव शेयर्ड। और इंशाल्लाह आपको आपके विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एज़ वेल एंड होप टू सी यू अगेन इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर सब। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर हबीब, थैंक यू।